What is the syllabus? First of all, whenever I start a topic, you should understand what is the syllabus of world geography. You don't have to read and understand everything what is in the world, है ना? जो UPSC के syllabus में mentioned है, that only you have to study. Okay? On the first day of class, I have told you to write the syllabus. What was it? Salient features. This you should write on the first page. Okay? Salient features of world's physical geography. ठीक है? This is the syllabus which UPSC has given. In that specifically, natural resources are very important. Plus the mapping. Map based questions are coming, right? Every year 2-3 questions with respect to location, है ना, which is related to current affairs. So geography, I have told geography, environment, ecology, everything should be related and connected with the current affairs. Okay, so this should be written on the front page of your world geography session. ठीक है? अब वर्ल्ड के बारे में what you know about world, how it looks, image दिमाग में है ना, क्या होता है वर्ल्ड, what it is. वर्ल्ड हम कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं, तो क्या होता है वर्ल्ड में? अगर हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, 2 मेजर थिंग्स वी सी, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. टोटल कितने ओशंस हैं? हाउ मेनी ओशंस आर देयर? यू टेल हाउ मेनी ओशंस. हाँ, विच वन? पैसिफिक, इंडियन ओशन. ओके, एंड सामने देख के बताओ कौन से हैं और बाकी कौन से हैं. दिस वन इज द पैसिफिक, दिस वन, ठीक है, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, दिस इज द सेकेंड वन. ये क्लियर होना चाहिए कि ओशंस कौन से हैं वर्ल्ड में, ठीक है. थर्ड वन विच इज इंडियन ओशन, विच इज द फोर्थ वन? आर्कटिक, विच वेयर इट इज, नॉर्थ और साउथ? Wait, so you tell fifth ocean, which is fifth ocean? Which one? What is the name? हाँ, what is the southern, south में कौन सा ocean दिख रहा है? No, Antarctica is not an ocean. सामने देख के आप बताओ क्या ocean दिख रहा है? Southern ocean. Okay, so this is the fifth one. So 5 oceans पहले clear होने चाहिए. World में total कितने oceans हैं? 5. If you want to write, you can write down 5 oceans and how many continents? Wait. How many continents? 7 continents. Which are they? Atlantic. 7 continents. Okay. Tell. Continents. 3 you told, right? Okay. North America, South America, third. And here what it is? Which continent? Asia is a separate, Europe is a separate or single? One continent. What? Europe is different. Europe is different. Okay, chalo. Huh? Yeah, Europe is different. Okay, so this one is the 4th continent. Asia is the 5th. Which is the 6th continent? Australia. 6th. And 7th one? 7th one? What is last? Name it. I'm asking you. Antarctica. Okay. If you will speak properly, then only you can write properly. Okay. Pronunciation अगर सही होगी तो आपका grammatical error नहीं होगा. Understanding? ठीक है. तो whatever first point आप क्या लिखोगे? 7 ocean, 7 continents कौन कौन से हैं? सबको पता है या लिखवाऊं मैं? आप लिख लोगे? पता है ना सबको? You know ना 7 continents? कल मैं पूछूंगी, भूल मत जाना. ठीक है. 5 oceans पता है? Yes. ठीक है, तो ये सिलेबस क्लियर हो गया. क्या पढ़ना है हमें? यूपीएससी का सिलेबस इज दिस. इन दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट physical geography. When we talk about physical geography with respect to world, what all things we will consider? Mountains and hills or peaks. ठीक, neighboring oceans and seas, है ना? Oceans and seas. ठीक है, the bounding oceans, which continent is there and surrounding oceans and continents that we have to see. Next we have to see about any islands. ठीक है, islands, plateaus,
ठीक है, प्लेन्स एंड अदर बायोजियोग्राफिक फीचर्स विच इज इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टू एग्जाम। इंडस्ट्री वाइज वट एवर मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, दैट शुड बी टेकन कंसिडरेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन वी विल डू ईच कॉन्टिनेंट, वी विल अंडरस्टैंड इट्स लोकेशन, इट्स कॉन्टिनेंट एंड फिजियोग्राफिकली हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, देन एट लास्ट वी विल कंप्लीट दिस मिनरल वाला पार्ट। ओके, कि पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ इंपॉर्टेंट है। आप दोनों का मीडियम इंग्लिश है या हिंदी मीडियम है? इंग्लिश, हाँ इंग्लिश ही है, अच्छा ठीक है। गेटिंग यू रोहित ऋतिक, चलो। So first continent that we will study is North America, ठीक है। चलो अब हम इसको ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे कि how we should draw this North America, ठीक है। First one is अच्छा, what you do landscape में अपने शीट को टर्न कर दो, नोटबुक को, ठीक है। मेक अ लैंडस्केप ऐसे करके, ठीक है, उसके 4 पार्ट्स डिवाइड करो, मतलब रफली, मतलब you divide like this, okay, like this you demarcate, okay, getting divided into 4 parts। मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं यहीं पे ड्रॉ करवाऊंगी, बिकॉज इन एग्जाम्स व्हाट यू टू डू, यू हैव टू ड्रॉ योरसेल्फ। वहां पे मैप तो मिलेगा नहीं, हाथ से ड्रॉ करना होगा, तो आप लोग को सीखना पड़ेगा कि कैसे ड्रॉ होता है। एनी इश्यूज? क्यों हंस रहे हो आप? हाँ तो हाथ से तो मैं बनाने को बोल रही ना, ठीक है। चलो बना लिया, 4 पार्ट्स कर लिए। चलो एट वन कॉर्नर यू विल स्टार्ट, फर्स्ट यू ड्रॉ सी। अरे टेक वन पार्ट, दिस टॉप, अच्छा ठीक है, जैसे अरे 4 पार्ट में किया, ये वाला पार्ट टॉप राइट पार्ट लो, टॉप राइट कॉर्नर, ओके ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर में, हाँ करेक्ट, दिस वन पेज, ओके। दिस इज द लैंडस्केप, ओके, यू फर्स्ट स्टार्ट विद दिस वन, ओके। किसी में भी ड्रॉ कर लो, है तो एक ही चीज, रेक्टेंगल ही तो है, किसी में भी ड्रॉ करो, कॉमन सेंस है ना। सो यू विल स्टार्ट फर्स्ट विद द सी, वी आर ड्रॉइंग व्हाट, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट, चलो एक बार देखो, आप इधर देखो, सारे इधर देखो, ठीक है। हेलो भाई, क्या है? हाँ मैं बना रही, पर आप इधर उधर बातें कर रहे हो ना, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। चलो, a little of zigzag and a great depression will come, ठीक है। Then a wing of a bird, okay, इसको मैं then what will come from here, wing of a bird and inverted S. How we will draw? C, slanting line, a little bit of zigzag and a depression, then wing of a bird, inverted S. They both will come here and a little of hill, छोटा सा हिल बनाएगा यहाँ पे, similar to North America. See, एकदम एग्जैक्ट वहां पे आपको वो नहीं बनना, पोर्ट्रेट या आर्टिस्ट नहीं बनना है वहां पे, है ना, स्कीमेटिक डायग्राम, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट। दिस इज द डिप्रेशन, दिस वन अलास्का वाला पार्ट एंड दिस वन इज एस। गेटिंग? फर्स्ट पहला वाला बना के देखो, पहले सिंपल बनाओगे तभी तो उस पे एक्सपर्ट बनोगे ना। गेटिंग? पहले एक बाउंड्री बनेगी तब तो उस पे आप और वर्क करोगे। अगर आपको इतने छोटे से हाफ पेज में पूरा एक वर्ल्ड मैप बनाना है तो बहुत ज्यादा उसकी क्लैरिटी, उसके अंदर डेप्थ में एक एक मार्जिन को आप नहीं शो कर पाओगे, है ना, और इतना टाइम भी नहीं होता कि एकदम माइन्यूट से डिटेल्स आप शो कर पाओ, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप इधर से कुछ कॉर्नर्स निकालो, इधर कैसा है वैसा वैसा, ओके। यू बोथ आर गेटिंग? यस। ड्रॉन? Okay, good for first time. That's why I made 4 blocks that you will practice again and again. Okay. चलो, look here. यहाँ तक ड्रॉ किया सबने? Everybody, you both drawn. So ये जो लाइन जाती है, ये आप देखो. And this will be from the center of the C. ये 2 लाइनें ड्रॉ करोगे आप. This will be 30 degree.
30 degree north. And what will be this one? Below 30 degree, what major line we have? Tropic of Cancer. Getting these two latitudes, in which hemisphere Northern America is located? Which hemisphere? What I mentioned here, N. So this shows it is in Northern Hemisphere. Okay. और जो सेंटर वाला लॉन्गिट्यूड जिसको डिवाइड करता है, दैट इज 100 डिग्री वेस्ट. If anyone will ask where is North America located, so it is located in Northern Hemisphere and western portion, not on the east. This is the western longitude, 100 degree western. ये मैप में आप देखो, चलो मैं यहीं पे दिखाती हूँ. यहाँ पे आप देखो, ये वाली जो लाइन है, this is, which is this? 60 कैसे होगा? हाँ, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, दिमाग में जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो ये चीज ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाना है, सो वेयर इट विल गो, इट विल कट दिस सी. गेटिंग दिस पॉइंट? एग्जामिनर मार्क्स कट कर देगा अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस सी के ऊपर बना दिया या नीचे बना दिया. ये एक मेजर थिंग है, आपको दिमाग में होना चाहिए. एंड दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 23 डिग्री एंड नॉर्थ. Getting why I am making you to draw like this? Then which is this? This is 60 degree north and this is 66.5 degree north. This is Arctic Circle. Getting this Arctic Circle, Tropic of Cancer इसके बीच में है नॉर्थ अमेरिका. इमेज दिमाग में सेट होना चाहिए. ठीक है, क्लियर हो गया? चलो ये ड्रॉ कर लिया सबने, ये ड्रॉ कर लिया. चलो अब नेक्स्ट वाले पे एक और ड्रॉ करो, ऐसा एक और बॉक्स में. वर्ल्ड मैप दिखा दो एक बार, थोड़ा सा वो पैटर्न आ जाए इसको देख. अरे नेक्स्ट ब्लॉक में आप एक और ऐसा बनाओ, नॉर्थ अमेरिका बनाओ. हाँ, नहीं मतलब उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मत मार्क करना, ओनली यू ड्रॉ द बाउंड्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका. हाँ, नॉर्थ अमेरिका वैसा ही, सिर्फ लैटिट्यूड्स वगैरह मार्क मत करना उसमें. ओके, ओनली ड्रॉ द आउटर बाउंड्री. It's your call, any side you can draw. Are you able to draw? Okay. चलो अब इस पेज के सामने नेक्स्ट पेज पे आप नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखो पहले. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, जैसे एक पेज आप कर रहे हो ना, उसके सामने या उसके नेक्स्ट पेज में, दिस इज, या तो आप उसके सामने लिखो या इसके पीछे लिखो. फ्रेश पेज पे नॉर्थ अमेरिका के बारे में 3-4 पॉइंट्स. ओके, अभी उस पे काम करेंगे, जो मैंने बनवाया है उस पे अभी काम करेंगे. ओके, नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फेयर, लोकेटेड इन नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फेयर. अच्छा आप बताओ, यूएसए में कौन सी कंट्रीज आती है? यूएसए क्या है? नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं? एनीवन? यहाँ पे कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में कोई डिफरेंशिएट करो. वैसे मैं आपके सामने तो लिखा हुआ है, आप खुद से बताओ ऐसी, अभी तो गैस करो, बिना देखे बताओ. मेक्सिको
नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं? यूएसए में क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? व्हाट 50 स्टेट्स हैं, करेक्ट है ना। कनाडा अलग कंट्री है, मेक्सिको अलग कंट्री है। ओके, ये चीज क्लियर है। ये आप देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? ये पोर्शन है, दिस इज द सेंटर पार्ट, दैट इज यूएसए। इसके ऊपर ये जो है दिस इज कनाडा, और इसके नीचे क्या है? दिस इज मेक्सिको। एंड यूएसए का एक और पार्ट जो है ये है अलास्का, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। गेटिंग 3 कंट्रीज, और ये जो यहाँ पे कंट्रीज हैं ये छोटी छोटी, ये टोटल 7 कंट्रीज हैं। तो टोटल 10 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका में आती हैं। नहीं, ये 7 नहीं, यहाँ पे 7 और 3 ये वाली, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको एंड 7 दीज कंट्रीज, दीज लोकेटेड इन, ये दिख रहा है दिस पोर्शन, गेटिंग दिस। सो इन सबको मिला के ये नॉर्थ अमेरिका होता है। ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज? टोटल 10 कंट्रीज। राइट डाउन टोटल। एनी इश्यूज अंकुर? 23 है टोटल कंट्रीज। किसने बोला? नॉर्थ अमेरिका में 23 कौन सी कंट्रीज हैं? आप देख के बताओ मैप में, आप बताओ कौन सी 23 कंट्रीज हैं? क्यूबा हो गया, क्यूबा कंट्री, क्यूबा कहाँ है? ये कैरिबियन, ये अलग चीज आता है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं आता। साउथ में, हाँ, ये नीचे ये आइलैंड्स हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं आते। ये जो क्यूबा वगैरह ये आप बोल रहे हो ना, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये अलग कंट्रीज हैं। ठीक है, उनको मत इंक्लूड करो, देयर आर आइलैंड नेशंस। ओके, नॉर्थ अमेरिका जब मैं बोलती हूँ तो ये 10 कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जुड़ी हुई है ना इनसे, वो आइलैंड नेशंस हो जाएंगी। ठीक है, गेटिंग? टोटल 10 कंट्रीज, पहली कनाडा, दूसरी यूएसए, तीसरी मैक्सिको एंड राइट ऑन अदर। फर्स्ट वन ग्वाटेमाला, ये मैप में देखो, पहले देखो यहाँ पे कौन सी है, ग्वाटेमाला है। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा, और क्लोज करूं इसको, इज इट फाइन? एक ये कंट्री है, एक ये है, दिस तेगुचिगल्पा, सैन एल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा। ये कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए, यू नो, ये कंट्रीज आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ग्वाटेमाला, एक तो ये इरेज नहीं होता, ग्वाटेमाला GUATEMALA, ग्वाटेमाला, एल सैल्वाडोर, बेल्यूज, होंडुरास, निकारागुआ एंड कोस्टा रिका, एंड दिस इज दी पनामा। हाँ, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सैल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। रिटन? चलो लिख लो नाम से। बेलीज, BELIZE, बेलीज है। पॉलिटिकल लोकेशन समझ में आई? कैपिटल है वो, कैपिटल है सैन जोस, कोस्टा रिका का कैपिटल है सैन जोस। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल भी मार्क्ड है। ग्वाटेमाला का क्या है? ग्वाटेमाला। ठीक है, बेलीज का बेल्मेपोन। ठीक है, तेगुचिगल्पा, होंडुरास का तेगुचिगल्पा, एल सैल्वाडोर का सैन सैल्वाडोर, निकारागुआ का मानागुआ। ठीक है, कोस्टा रिका सैन जोस, पनामा का पनामा सिटी। ओके, आपको लिखना है साथ में, तो उसके सामने आप कैपिटल्स भी लिख सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, यू डोंट नेवर वांट टू राइट एनीथिंग अंकल, यू ऑलवेज से कि नहीं मैम नहीं लिखना, है ना। अच्छा, बिना देखे आप बताओ, कैपिटल्स बताओ फिर। चलो ठीक है, ये लिख लिया। चलो एक नंबर .1 लिखो, डेनमार्क स्ट्रेट .1,
उसको हम मार्क करेंगे मैप पे। डेनमार्क स्ट्रेट, फर्स्ट नंबर 1 डेनमार्क स्ट्रेट, सेकेंड डेविस स्ट्रेट, थर्ड हडसन बे, डेविस स्ट्रेट। चलो मैं लिखवाती हूँ। फर्स्ट क्या बोला मैंने? डेनमार्क, दूसरा डेविस, तीसरा हडसन बे, चौथा वी आर नेक्स्ट यू हैव टू राइट बेरिंग स्ट्रेट। पांचवा गल्फ ऑफ अलास्का, नेक्स्ट यू हैव टू राइट पैसिफिक ओशन, सिक्स्थ वन पैसिफिक ओशन। क्या एक बार आप सीक्वेंस में लिख लो, फिर उसको मैप में करना। लिखोगे तो याद होगा, फिर मैप में देखोगे तो और याद होगा, ठीक है। देयर इज अ प्रोसेस टू लर्न ना। गल्फ ऑफ पनामा पैसिफिक लिख लिया, फिर गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ मेक्सिको, सेवेंथ वन यू रोट पनामा, मेक्सिको, देन कैरिबियन सी, नाइन्थ वन यू राइट कैरिबियन सी, ठीक है। एंड टेंथ वन अटलांटिक, कैरिबियन डबल, टेंथ वन इज अटलांटिक। So with respect to North America, how many water bodies you have to remember? These oceans, water bodies. This you have to remember, okay? चलो अब हम इसको एक बार मैप में देखेंगे। We will look at the map. चलो फर्स्ट वन व्हाट आई सेड, डेविस स्ट्रेट, विच स्ट्रेट आई स्टार्टेड विद? इधर आ जाओ, नॉर्थ में आ जाओ, इसमें है ये डेनमार्क स्ट्रेट, इसमें नहीं शो रहा। एक सेकेंड, ग्रीनलैंड, देखो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ अमेरिका, हैव यू ड्रॉन दिस? इसके पास में एक जो यहाँ पे छोटा सा वी आता है, ट्राइंगल आएगा, दैट इज ग्रीनलैंड, ठीक है। दिस इज द ग्रीनलैंड। सो फर्स्ट वन व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट डेनमार्क स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट आएगा, आपने एक और मैप बनाया होगा फ्रेश, तो दिस विल बी डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है। फर्स्ट वन, सेकेंड वन जो मैंने बोला डेविस स्ट्रेट बोला, सो दिस विल बी दी डेविस स्ट्रेट। आप कैसे करोगे? चलो मैं यहां पे बनाती हूं, दिस इज ठीक है। सो दिस इज दी ग्रीनलैंड, ओके। यहां पे फर्स्ट वन क्या बोला मैंने? डेनमार्क, सेकेंड वन इज डेविस स्ट्रेट, थर्ड वन हडसन बे, दिस इज द थर्ड आई सेड, हडसन बे, करेक्ट। सो दिस इज द हडसन बे, ठीक है। फोर्थ वन बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, Gulf of Alaska, fifth one what I said, this is fourth one, fifth one is Gulf of Alaska, sixth Pacific Ocean, so this one is Pacific Ocean, seventh one
where it will be Gulf of Mexico, Gulf of Panama or Gulf of Mexico was seventh? Panama. This is seventh is Panama, right? This is seventh one, Gulf of, and eighth one was Gulf of Mexico. Ninth one was Caribbean. So ninth here we will see Caribbean. Caribbean Sea. And 10th one was the Atlantic Ocean. अभी दिखाऊंगी, पहले आप लिख लो फिर दिखाती हूँ मैं। मैप उसी लिए तो है, पहले सब लिख लें फिर डन। चलो आप लिख लो पहले, क्योंकि व्हेन यू विल राइट ना देन ओनली यू विल रिमेंबर। ओके, कल मैं फिर रिवीजन लूंगी, बिना देखे लिखवाऊंगी मैं इसको। क्या कितने शौक में क्यों हो गए? मैं तो हमेशा रिवीजन लेती हूँ। अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई रोट इन द सीक्वेंस? एक बार आप याद करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, सारे याद होंगे? बिना देखे बोलोगे? रौनक हो गया? चलो एक बार बिना देखे मैप बना के फिर करते। चलो हो गया डन। एक बार मैप में देखते हैं इसको, जिस मैप में, चलो इसमें देखते हैं। ये तो लैब्राडोर सी है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, इसके पास में हमारा पहला स्टेट क्या था? फर्स्ट वन वाज दी, यू जस्ट रिमेंबर हियर इट इज अ डेनमार्क स्ट्रेट। यस, आइसलैंड के उसके बीच में। ओके, एक और छोटा सा अगर मान लो तो यहाँ बना लो, आइसलैंड है छोटा सा, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ यूरोप, इसका नॉर्थ अमेरिका का नहीं है, ठीक है। डेनमार्क स्ट्रेट, ओके, दिस वाज व्हाट वाज ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में डेविल स्ट्रेट। अगर नॉर्थ अमेरिका बोला है तो नॉर्थ अमेरिका, अगर स्पेसिफिकली कनाडा बोलेगा तो कनाडा के बीच में। कंट्री पता है ना यहाँ पे ऊपर कौन सी है? कनाडा से। तो ये हो गया हमारा डेविस, ठीक है। इसी के पास ये सी कौन सी बहती है? लैब्राडोर सी। चलो ये क्या है? हडसन बे। गेटिंग थर्ड वन वाज हडसन बे। ये डिप्रेशन जो है हडसन बे है। अब इसके ऊपर नहीं, ऊपर कटा हो, ठीक है। यहां पे देखो बेरिंग स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट। ये किसको डिवाइड करता है? इधर क्या होगा हमारा? रशिया होगा। इफ यू लुक इन द वर्ल्ड मैप, ये जो लाइन है इधर क्या आता है? रशिया हो जाता है, और इधर क्या हमारा? नॉर्थ अमेरिका है। तो अलास्का और रशिया के बीच में जो स्ट्रेट डिवाइड करती है दैट इज बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में एक कौन सी सी है? बेरिंग सी। नियर टू अलास्का देयर इज अ गल्फ ऑफ अलास्का। देन ये कौन सा सी हुआ बड़ा सा? पैसिफिक, ठीक है, दिस इज द पैसिफिक ओशन। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या था हमारा? दिस व्हाट इज दिस? दिस वाज पनामा, ठीक है, पनामा देखा नीचे। दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो सी के अंदर है दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इसी के पास में जब भी पूछे कि ये वाला पार्ट कौन सा है, तो ये न्यूज में अगर बात आता है, ये फ्लोरिडा होता है, फ्लोरिडा स्टेट ऑफ यूएसए। ओके, ये अगर पॉइंटेड वाला कभी भी न्यूज में आएगा तो दिस इज द फ्लोरिडा, इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे जनरल। नेक्स्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको, देन वी स्टडीड कैरिबियन। नाइन्थ वन वाज कैरिबियन, राइट? कैरिबियन सी लोकेशन दिख रहा है। एंड उसके बाद लास्ट क्या 10th पॉइंट क्या था? अटलांटिक ओशन, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में ये क्लियर हुआ। चलो ये दूसरा फिल हो गया। चलो अब नेक्स्ट आप लिखो, नहीं अभी आप लिखो माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जहां पॉइंट्स लिख रहे थे उसमें आप माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका।
ये भी मैथ थी उसी थी। सर आपने पढ़ रखा है, बाकियों के लिए नया है ना, उनको नहीं पता अभी, है ना। डायरेक्टली आप मैप में जंप कर लोगे, बाकी तो नए हैं, है ना। अच्छा आप बताओ 5, आप डायरेक्टली मैं मैप में बता दो कि ये चीजें हैं, आप बताओ 5 माउंटेन्स बता दो। आपके अकॉर्डिंग में पढ़ाऊं या अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊं, आप ये बताओ। नहीं मैम थोड़ा सा उससे ये पता चला कि तो मैंने मना किया, मैं मैप में दिखा रही हूँ ना आपको, सबको दिखा रही हूँ मैप में या नहीं दिखा रही हूँ, सॉरी ठीक है। सो हाउ यू विल राइट BA, don't take it that way, I am just saying if you are studying according to my way, so study like that now, don't interrupt it, okay। ये BACCR, ठीक है, ऐसे लिखो। हाँ वही तो अभी रिवील करेंगे, इसीलिए तो बोला आज इंटरेस्टिंग क्लास है। कोड ही तो है। अब जब भी BACCR याद आएगा तो आपको माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका याद आने चाहिए, ठीक है। ब्रूक्स, ठीक है, KES, ब्रूक्स, अलास्का, कोस्टल, कैस्केड, रॉकीज, ये वर्ड्स जबान पे थोड़े फिट होने चाहिए, ठीक है। ब्रूक्स, अलास्का, कैस्केड, कोस्टल, कैस्केड और रॉकीज। जब भी माउंटेन्स आप पढ़ोगे टोटल 6 होंगे, एक और जो होगा हमारा इन लीग से हटके जो है वो है एपेलेचियंस, ठीक है। ये सब एक तरीके के हैं और ये अलग जगह से अलग सेपरेटेड इसको कर रखा है, ठीक है। एपेलेचियंस, अच्छा नहीं दिख रहा, APPALACHIAN, एपेलेचियन माउंटेन्स। ये सब नए माउंटेन्स हैं और एपेलेचियन क्या है हमारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन, फोल्डिंग की वजह से व्हाट इज हैपनिंग टेक्टोनिक प्लेट में देखा था हमने, ओशन है एक तरफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। सो बोथ मर्ज एंड फॉर्मेशन ऑफ दीज माउंटेन्स टुक प्लेस, ओके। फोल्डिंग माउंटेन्स, तो ये समझ में आया ये कौन से हैं, यंग माउंटेन्स है। और इन तीनों को रॉकीज कॉर्डिलेरा कहा जाता है, इन तीनों को रॉकीज कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा जहां भी वर्ड आएगा दैट मीन चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। 6 माउंटेन्स आपको नॉर्थ अमेरिका में, यू हैव टू लर्न 6 माउंटेन्स। आर यू बोथ गेटिंग सोबू यू? हाँ ओल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड, फोल्ड दोनों है, फोल्ड ये भी है, बस ओल्ड और यंग का डिफरेंस है। ये न्यूली फॉर्म्ड है, ये पुराने है, ये मतलब रेसिडुअल टाइप की, जैसे अरावली रेंजेस हमारी पुरानी हो गई है उसी तरीके से ये एपेलेचियंस है, ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन है ये यंग माउंटेन्स है। गेटिंग? इन केस क्वेश्चन में कभी आ जाता है ना कि ये फोल्ड माउंटेन यंग है कि ओल्ड है, तो उसके रिस्पेक्ट से जो रॉकीज माउंटेन्स है दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। इन स्टेटमेंट दे कैन गिव एपेलेचियंस आर ओल्ड माउंटेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स, ओके। तो स्टेटमेंट में आपको ये डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आर यू बोथ गेटिंग? आप लोग को समझ में आ रहा है? ओके, यू आर गेटिंग? सो व्हाट वी आर स्टडीइंग, आप बताओ। माउंटेन्स, हिल्स और प्लेट्यूज, व्हाट वी आर स्टडीइंग? माउंटेन्स, ओके। नॉर्थ अमेरिका के 5 माउंटेन्स बताओ, टेल 5 माउंटेन्स, स्पीक इट अप। कोस्टल, कैस्केड, रॉकीज, ओके। चलो नाउ वी विल लुक दिस इन द मैप, ओके। ठीक है, सबसे पहले बी हमने देखा था, क्या क्या देखा था आप बताओगे? सबसे पहले हमने ये देखा था ब्रुक्स, अलास्का, ठीक है। कोस्ट या कोस्टल इज सेम थिंग। एक मिनट इसका
This is third one. Next, what we studied? Cascade. Cascade is this one. This is the fourth one. Next, what we studied? Rockies. This whole chain of mountains are called Rocky Mountains. Getting? First one Brooks, second Alaska, third Cascade, fourth is Rockies. यही पढ़े थे. और बचता कौन है एक? ये रहा Appalachian Mountains. आप लोग एटलस नहीं लेके आए हो, इसलिए आप लोग जाके घर में जो नियॉन मार्कर्स होते हैं इनको मार्क करोगे. ओके, हैव यू ब्रॉट मार्कर्स एंड एटलस? तो उस पे आप लेके इसको मार्क करना, ठीक है, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो आपके एटलस बुक में, ताकि जब आप दोबारा पढ़ोगे तो ये माउंटेन्स आपको दिखे. ठीक है, गेटिंग? जो मार्कर्स होते हैं, गेटिंग? हाउ यू हैव टू डू वर्ल्ड मैप? एटलस में आप ये सब पॉइंट्स ले जाके मार्क करोगे और कल से क्लास में एटलस लाओगे कि ताकि आप साथ साथ में उसे आप मार्क करते रहो. दैट्स हाउ वी विल डू मैप वर्क. गेटिंग? नाउ नेक्स्ट टाइम जब भी आप बुक खोलोगे एटलस तो वो आपको दिखेंगी चीजें. हाँ, ब्रूक्स माउंटेन रॉकी का एक्सटेंडेड पार्ट है या ओशन का और कॉन्टिनेंट के बीच में? ये यहीं तक सीमित है, ये ऐसे इतना है. ठीक है, अलग लेयर्स हैं, अलग रेंजेस होती है ना. तो ब्रुक्स एक अलग रेंज है और अलास्का एक अलग रेंज है. जैसे हिमालय में शिवाद्री, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक 3 रेंजेस है ना, उसी तरह से ये एक अलग अलग रेंजेस है. गेटिंग? ये हम पांचों ने देख लिया. हम पांचों चीजें. अब बताओ, अब बिना देखे बताओ कौन बताएगा? एनीवन? 5 माउंटेन्स. हाँ, यू टेल. हाँ, आप बताओ. Brooks, हाँ Alaska, हाँ, Coastal, कोस्टल, हाँ, कैस्केड, हाँ, रॉकी, करेक्ट. ठीक है, अब इसके बाद माउंटेन पीक्स हम लिखेंगे, हाईएस्ट पीक्स. नेक्स्ट, अभी तो हमने माउंटेन रेंजेस देखे कि माउंटेन रेंज कौन सी फ्लो कर रही है. अब जैसे इंडिया में हिमालय फ्लो करती है, उसका हाईएस्ट पॉइंट कुछ और है, K2 है ना. तो उसी के रिस्पेक्ट में हाईएस्ट पीक्स हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज माउंट मैकिनले. इसमें देखिए पीक्स हम लिखेंगे. फर्स्ट वन इज माउंट मैकिनले. पीक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सिर्फ अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका. ओके, पीक्स